मम्मा ये आप ही हो। हाँ, ये मेरे से ठीक नहीं हो रहा। सीधा ज्वाइन का आता है ऑप्शन से लिखो। हम्म, हाँ, कैसे? मतलब ये गैलेक्सी अपना ये शशि अच्छा, ये कटारिया मैं का आपको बता लिखना है दूंगी, फिर नाम। मैं आपको बाद में मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। है। गुड इवनिंग। I welcome you all for today's session and today is weekend and आज मुझे लगता है कि हम इनका जो इंट्रोडक्शन वाला है वो फिनिश करेंगे और मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया नहीं मतलब पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एंड Tushar, I'm not able to get the meditation, but there is a very beautiful chakra song. I really wanted to share with everyone. That is a very, very beautiful song. If you, that is a song for like 5 minutes. If you allow me to share that, there is no one who is speaking. Sisankita, Sisankita Das, Harry, Mama. Good evening, Indu auntie. Good evening. Yeah. Good evening. There is some disturbance in my camera. So I'll play a very, very beautiful song today. This is just for of 5 minutes. I hope you guys will enjoy. ये सॉन्ग है ये चक्रास के लिए है स्पेसिफिकली जिन्होंने भी ये बनाया है और गाया है। आई फाउंड इट सो कनेक्टिंग एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा टच किया ये। मॉर्निंग में मैंने पहली बार सुना कि हम अपने चक्रा से बात कर रहे हैं कि जो भी इमोशंस हमारे चक्रा में ब्लॉक्ड हैं और आई मीन जो भी एक्सप्रेशन जो भी हमने होल्ड बैक किया हुआ है तो वी आर फीलिंग सॉरी फ्रॉम आवर चक्रास and giving us wisdom to reconnect with our chakras again. So I'll just play that song in just a moment. If you can see my screen. Hi, Bilasha. Good evening. Good evening. So I'm going Yes. to play this song. You guys please enjoy this, and we'll start the session at 7:12 probably. Right? I'm just playing it. Thank you for me. Oh, oh, I'm sorry, Earth, for the fear I've known, for feeling unsafe, for walking alone. Please forgive the times I lost my base. Thank you for holding me in your grace. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, soul, for hiding my light, for
for shaming my joy. And since you were right, please forgive the tears unspoken. Thank you for the parts now open. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. ये तो तुझे पता होगा. I'm sorry, self, for playing small, for doubting my strength, ignoring the call. नहीं मुझे कहाँ से Please पता. forgive my need. तुझे पता होगा. मैं पहले मुझे कहा था बस अभी आ गई. Thank you. Now I rise with pride. फिर क्या हो जाएगा? Please forgive me. Thank you. I फिर love क्या हो जाएगा? I'm sorry, heart, for the walls I made, for closing you up, for love delayed. I forgive the pain and fear. Thank you, love, for drawing near. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, voice, for staying unheard, मम्मा को फोन करिए. swallowing truth for silence. Please forgive the fear to speak. Thank you for making my voice unique. Hi, there is a park up. सुनैना, आप अपने सेकंड ऑफिस में थे? Hi, good evening, everyone. So sorry I got late, and I think because I and Sunaina live in the same society, मैं थोड़ा बाहर थी. Just reached. I think there is a park at. मुझे यहाँ हुआ है, तो I'm sure सुनैना के उधर भी same problem हुआ होगा. Yeah, I'm so sorry. मेरा desktop पे connected था, so No वो problem. light, yeah, electricity problem was there. So You can continue with this song. I think that was a beautiful song, wasn't it, Tushar? मैं अभी पहुंची हूँ. I couldn't listen. I just rushed to the Oh, laptop. I asked my अच्छा. son to operate it and just put it on and switch on the recording as well. All right. Yeah. Right. You So can what keep I'm going to on. do, like अभी थोड़ा सा time start होने में लगेगा. Probably we can play it at the end of the session. So अभी क्योंकि मेरा desktop पे मतलब start होने में थोड़ा सा time लगेगा. So we can start with the book. If Tushar, you can share or Sapna ji can share the screen because I will take some time. Yeah, सपना जी हिंदी वाला आज टेक अप कर रहे हैं, तो सपना जी will be sharing for today. Has she confirmed? She the other day also, and we had a call. You had a call with her, no? आपकी अभी बात हुई थी ना? बुक, हाँ मैंने बुक शेयर करने के लिए हाँ बोला तो था उनको वैसे. सपना जी, can you please unmute and just confirm if you are sharing the book, as we had a word with you अभी. Yeah, Harry says it was a beautiful song. Oh, it was a chakra song that we are looking for the forgiveness from our chakras. The day we are born and we are living our life with that loneliness and with that that we are having so many fears and we have not been taking care of our chakras and emotions. So we are feeling sorry for each and every chakra. Like that was a Ho'oponopono prayer. And मुझे इससे ज्यादा ब्यूटीफुल चक्रा फॉरगिवनेस मेडिटेशन मतलब सॉन्ग कहीं नहीं दिखा. इट वाज सो ब्यूटीफुली वेल संग, वेल प्लेड. आई मीन बहुत अच्छा म्यूजिक पीछे जो उन्होंने प्ले किया, दैट वाज रियली वंडरफुल.
I'll share in the group as well if one can practice. I mean, we can practice in early morning. जैसे हम लोग रेकी practice करते थे ना. And I Yeah. just want to welcome Tavinda ma'am today. She has also joined us, and she's our Thank pranic you, mentor. thank you, thank you. She's our pranic mentor. And जितना भी चक्रा के बारे में हमने learn किया है, so Tavinda ma'am is one of them. And I really welcome you from the bottom of my heart, ma'am. Thank you, sweetheart. Thank you. Thank you so much. Would like to learn more from you today. A very warm welcome to you, ma'am. Thank you, Glad to Tushar. have you Thank you. on our platform. Thank you. Thank you so much. Thank you. I'm sorry I couldn't be there with you today. Though I wanted to, but I had certain prior commitments, and so I wouldn't stay long there. But No worries. definitely, definitely we will meet. Yeah, we connected already. Ji. Thank you so much, ma'am, for coming. Thank you. Yeah, Sapna ji, will you be able to share? Or I'll just do that. मेरे पास Tushar, you have the book with you, Hindi? I have Hindi the book है book. आपके पास? हाँ, मैंने इंग्लिश का शेयर भी कर दिया है. No, otherwise Hindi book है आपके पास? She has shared the book with me पहले. No, I don't have Hindi. I मैं have share कर देती English only. हूँ. मैं share कर देती हूँ आपको एक सेकेंड. आप शेयर कर देना बिकॉज मैं मोबाइल से शेयर नहीं कर पा रही हूँ. अभी मैं मोबाइल से ले रही हूँ क्लास. थोड़ा सा टाइम लग रहा है No इंटरनेट problem. कनेक्शन के लिए. या आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू. आप इतने इंग्लिश वाला टेकअप कर लो. आई जस्ट टेक हिंदी वाला. Yeah, okay. या So the pause symbol after we have done. या We'll resume from where we left. The pause symbol. या One moment. It's 7:16. आज हमने like our other sessions, we start with the mindfulness practice or meditation. But today, due to the technical glitch and due to arranging while I was late and we were arranging some other person, we couldn't start with the meditation. But never mind. Let's start with the reading and just enjoy this moment. All right. So we left from the pause. So I'll resume from here onwards. The pause symbol after certain passages is a suggestion that you may want to stop reading for a moment, become still, and feel and experience the truth of what has just been said. There may be other places in the text where you will do this naturally and spontaneously. As you begin reading the book, the meaning of certain words such as being or presence may not be entirely clear to you at first. Just read on. Questions or objections may occasionally come into your mind as you read. They'll probably be answered later in the book, or they may turn out to be irrelevant as you go more deeply into the teaching and into yourself. So these two paragraphs ये आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि बहुत सारे pauses, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको हो सकता है रिफ्लेक्टिव जोन में ले जाए. ऐसे वर्ड्स आएंगे जैसे कि being है, presence है, जो आपको समझ नहीं आ रहा यार क्या है, क्या what is it to be in your being or to be in the present or in the moment. तो आप तब भी कहते हैं पढ़ते रहो, इस बुक को सुनते रहो, और आपके क्वेश्चंस या ऑब्जेक्शंस हैं वो आपके माइंड में आते रहेंगे एंड इट्स सो नेचुरल दैट दे वुड कम. और प्रॉबेबली जब हम आगे आगे प्रोसीड करेंगे इस बुक में तो आपके क्वेश्चन जो है वो आंसर ऑलरेडी हो जाएंगे. और अगर वो आंसर नहीं हो रहे सो दैट मीन्स वो आपकी लाइफ में वो क्वेश्चंस ऑलरेडी इररेलेवेंट हैं एज यू गो मोर डीपली इनटू द टीचिंग एंड इनटू योरसेल्फ. और अगर उन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिल रहे, जस्ट बी श्योर कि वो क्वेश्चंस आपकी लाइफ में इररेलेवेंट हो सकते हैं, वो किसी और की लाइफ में रेलिवेंट हो, बट फॉर यू और जो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर ग्रोथ they may sound or they may be they will be irrelevant. Don't read with the mind only. Watch out for any feeling response as you read and sense of recognition from deep within. So don't read with the mind, मतलब कि अपना इंटेलेक्ट साइड पे रख के इसको पढ़ना है. हमने ये बुक को फीलिंग रिस्पॉन्स इमोशंस के साथ कनेक्ट करके पढ़ना है और इस बुक के साथ एक कनेक्शन रिकग्निशन बिल्टअप करनी है. I cannot tell you any spiritual truth that deep within you don't know already. कहते मैं आपको कोई भी ऐसी चीज, ये हमने लास्ट सेशन में यही पढ़ी थी, इसी बुक के लास्ट सेशन में, कि कोई भी चीज, किसी भी चीज का सीड जो है वो ऑलरेडी हम सब में है. वो सीड को डस्ट ऑफ करने की जरूरत है, उसके ऊपर जो मिट्टी चढ़ी हुई है, और उसको नर्चरिंग और रेलिवेंट एनवायरनमेंट देने तुषार जी, मैं कॉल पे थी दूसरे
नो अभी मैं प्रॉब्लम। शेयर कर सकती हूँ अगर आप जब बोलेंगे तो। या आप वैसे तो आई थिंक आई कैन गो विद द सुनैना, if if we can just go on with the English and translating, so I can go, I'm okay to go ahead like this only. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। या इफ एनीबडी, अगर किसी को, यू कैन जस्ट रेज थम्स अप, कोई भी थम्स अप कर सकते हैं अगर हिंदी का पीडीएफ हमें स्क्रीन पे शेयर करने की जरूरत है, जस्ट लेट मी नो। और यू कैन कम अप विद द सजेशंस कि हाँ हिंदी का पीडीएफ भी उसको पढ़ के दोबारा एक्सप्लेन करना है, नहीं तो इंग्लिश को सीधा भी एक्सप्लेन कर सकते। जी आई कैन जस्ट डू एनीथिंग that you guys suggest. Yeah, Sunaina, Yeah. shall we go ahead with the English and translating, or you want Sapna ji to share the Hindi? What do you think I we mean, should? as people will say, I mean, I'm okay. I was Yeah. waiting for people's response, and Yeah. yeah, you can raise Oh, a thumbs up if you're okay with the English and translating it into Hindi. Just show a thumbs up or a virtual hands. हाँ जी, एनीवन, गुरप्रीत स्माइलिंग, जस्ट शो थम्स अप अगर ये ओके है। गुरप्रीत स्माइलें दे रही है बड़ी बड़ी, बट आई वुड लव टू नो कि इसको कैसे करें, हाउ हाउ, या मतलब हम इसको इंग्लिश से ट्रांसलेट कर रहे हैं। यूजुअल पैटर्न हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने का है, लेकिन इंग्लिश से हिंदी अगर मैं ट्रांसलेट ही कर रही हूँ और हिंदी नहीं पढ़ी जाए तो वुड दैट बी ओके? या हिंदी का पीडीएफ कुछ ऐसे हैं जो हिंदी का, या अश्विंदर जी सेज ओके, या किसी को हिंदी का पीडीएफ चाहिए स्क्रीन पे, या और हम उनको अलग से भी शेयर कर सकते हैं। What तुषार, आई थिंक हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेट कर लोगे तो फिर पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके, सेम विद भूमिका जी, या अभिलाषा? सेम। Same. Okay, right. Good. Good. Great. So, Sunaina, I'll read the one page and explain, and then you take up the second page. Yeah, Yeah. that's fine. Yeah. Thank you. Let's go ahead. Ouch, black charging. Okay. Don't treat with mind only. Watch out for any feeling response as you read in a sense of recognition from deep within. I cannot tell you any spiritual truth that deep within you don't know already. That was there already. हमने लास्ट सेशन में यही पढ़ा था कि कोई भी स्पिरिचुअल सीड है वो हर एक के, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम पावर, तो वो सुप्रीम स्पिरिचुअल अंश ऑलरेडी हम में, ऑलरेडी बीच में हम उसी से बने हैं। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि हम वर्ल्ड में हैं तो बहुत सारे वाइसेस जो है हम उसको अडॉप्ट करते रहते हैं, एम्ब्रेस करते रहते हैं, नोइंगली एंड अननोइंगली, वी आर नॉट अवेयर। उसकी वजह से वो सीड, स्पिरिचुअल सीड जो है स्प्राउट नहीं हो पाता है, और मे बी इट टेक्स टाइम। मतलब कईयों के जल्दी हो जाता है, जैसे पॉपकॉर्न है, कईयों की कुकर में डालो तो एक पॉपकॉर्न जल्दी फटता है, कोई बाद में कोई बाद में। सो व्हेन यू हैव द राइट टाइम टू स्प्राउट टू योर स्पिरिचुअल सीड, वो अपने आप स्प्राउट हो जाएगा। All I can do is remind you of what you have forgotten. Living knowledge, ancient and yet ever new, is then activated and released from within every cell of your body. The mind always wants to categorize and compare. तो माइंड, दिमाग यही कर रहा होता है, कैटेगरी में चीजें लगा रहा होता है, लेबलिंग कर रहा होता है, और कंपैरिजन चल रहे होते हैं हमारे दिमाग में ना, कि वो अच्छा है, वो बुरा है, ये अच्छा है, वो बुरा है। मतलब हमारे लिए, हमारी परसेप्शंस के अकॉर्डिंगली कुछ चीजें अच्छी हो सकती है और कुछ बुरी हो सकती है, लेकिन सेम चीजें दूसरे इंसान के लिए, वही चीज जो हमारे लिए बुरी है वो उसके लिए अच्छी भी तो हो सकती है। तो हम ले कंपैरिजन और कैटेगरी के उस गेम में ही फंसे रहते हैं। बट दिस बुक विल वर्क बेटर for you if you do not attempt to compare its terminology with that of other teachings. और ये बुक आपको काम करेगी जब आप इस बुक को किसी चीज से कंपेयर ना करो और इसकी टर्मिनोलॉजी को कहीं से कंपेयर ना करो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको फ्लो के साथ पढ़ो, इसको कनेक्ट करो, इमोशन से रिलेट करो कि व्हाट दिस बुक इज ट्राइंग टू टीच यू। ज्यादा पास्ट और ज्यादा फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं है, just stay in the present as the book suggests. I use words such as mind, happiness, and consciousness in ways that do not necessarily correlate with other teachings. तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे वर्ड जैसे माइंड है, हैप्पीनेस है, कॉन्शियसनेस, आपका चित्त है, आपकी खुशी है, या आपका दिमाग है, ऐसे वर्ड यूज करूंगा इस तरीके से कि जो हो सकता है कि बाकी टीचिंग्स के साथ रिलेट ना कर रहे हो। यानी कि आपने चित्त के बारे में, या हैप्पीनेस, खुशी के बारे में, या दिमाग के, माइंड के बारे में जो भी चीजें आज तक पढ़ी हैं, मन के बारे में, नॉट दिमाग, मन के बारे में जितनी भी चीजें पढ़ी हैं पास्ट में, हो सकता है जो मैं आज बता रहा हूँ वो ना हो, उससे हटके हो।
सो डू नॉट गेट अटैच टू एनी वर्ड्स, लेकिन आपको किसी भी वर्ड से अटैच नहीं होना है। दे आर ओनली स्टेपिंग स्टोन्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड एज क्विकली एज पॉसिबल। तो आपने किसी भी टीचिंग या किसी भी टीचिंग के साथ अपने आप को बांधना नहीं है। हर एक टीचिंग को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह बनाना है अपनी लाइफ में और आगे ग्रो करते जाना है। Yes. When I occasionally quote the words of Jesus or Buddha from a course in miracles or from other teachings, I do so not in order to compare. उन्होंने कहा कि क्योंकि इस बुक में भी हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो उन्होंने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में या दूसरे जगह से ली होंगी, और वो जीसस के वर्ड्स हो सकते हैं, बुद्धा के वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रॉम अ कोर्स इन मेरेकल से लिए हो सकते हैं। बट कहते हैं मेरा मकसद कहीं भी या मेरी इंटेंट जो है कहीं भी कंपेयर करने की नहीं है, लेकिन टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट इन एसेंस देयर इज एंड ऑलवेज हैज बीन ओनली वन स्पिरिचुअल टीचिंग। अगर मैं अलग अलग चीजों को रेफर कर रहा हूँ किसी चीज को समझाने के लिए, तो मेरा सोल पर्पस या ओनली मकसद ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि हर एक, चाहे आप किसी भी रिलीजन में चले जाओ, किसी भी आप स्टडी में चले जाओ, नॉलेज में चले जाओ, अवेयरनेस में चले जाओ, किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करो, उन सब का जो सोल मोटिव या सोल पर्पस होता है, वो कहीं ना कहीं सोल एसेंस जो होता है वो एक ही रहता है। हालांकि जैसे कि अगर आपको दिल्ली जाना है या आपको कहीं लेट्स से गोवा जाना है, कहीं भी जाना है, तो जाने के बहुत अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। मैं कोई रास्ता चुन सकती हूँ, आप कोई रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन सब लोग पहुंच एक ही जगह पे रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाट ही इज डिस्क्राइबिंग। Some of these forms, such as the ancient religions, have become so overlaid with extraneous matter that their spiritual essence have become almost completely obscured by it. And that's so true. हम देख ही रहे कि बहुत सारे जो रिलीजन है, उन रिलीजन का एक्चुअल स्पिरिट या एसेंस जो है वो कुछ और होता है, लेकिन क्योंकि वो गलत हाथों में सौंप दिया जाता है या गलत हाथ में जिनके आ जाता है, वो अपनी पावर यूज करके उन रिलीजन को मकसद बना के अपनी आइडियोलॉजी को लोगों पे थोप रहे होते हैं। तो रिलीजन का जो असली एसेंस है वो कहीं ना कहीं खो जाता है, वो असली एसेंस लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। टू अ लार्ज एक्सटेंट देयरफॉर देयर डीपर मीनिंग इज नो लॉन्गर रिकग्नाइज्ड एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर लॉस्ट। इसीलिए बहुत सारे रिलीजन जो असली में बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वो पाखंड में जाने की वजह से या गलत लोगों के हाथ में आने की वजह से वो लोग उसको एक गुड बुक्स में नहीं ले रहे हैं। मतलब पीपल डोंट लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ सो एंड सो, या किसी भी रिलीजन की बात कर सकते हैं। व्हेन आई कोट फ्रॉम द एंशिएंट रिलीजन्स और अदर टीचिंग्स, इट इज टू रिवील देयर डीपर मीनिंग and thereby restore their transformative power, particularly for those readers who are followers of these religion or teachings. I say to them, there is no need to go elsewhere for the truth. Let me show you how to go more deeply into what you already have. Mostly, however, I have endeavored to use terminology that is as neutral as possible in order to reach a wide range of people. कहते मैंने बहुत ऐसी मेरी कोशिश ही रही है इस बुक में ऐसी टर्म्स यूज करूं जो इतनी न्यूट्रल हैं, मतलब हर एक आम को, एक लेमैन को भी समझ आ जाए, और उस वजह से ये बुक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। This book can be seen as a restatement for our time of that one timeless spiritual teaching, the essence of all religion. ये बुक जो है, ये जितने भी रिलीजन है आप उसका एक एसेंस भी मान सकते हैं। इट इज नॉट डिराइव फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, ये बाहर से कहीं से नहीं लिया, बट फ्रॉम द वन ट्रू सोर्स विद इन। जबकि ये एक मेरा अंदरूनी एक्सपीरियंस जो है, मैंने वहां से मेरे एक्सपीरियंस की उपज है। सो इट कंटेन्स नो थ्योरी और स्पेकुलेशन, इसलिए कोई थ्योरी नहीं है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कोई अट्टे सट्टे नहीं है, ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। I speak from inner experiences, and if at times I speak forcefully, it is to cut through heavy layers of mental resistance. और क्योंकि इस बुक में उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये बुक लिखी है, तो उन्होंने कहा कि कहीं हो सकता है मैं बहुत लाउड या असर्टिव टर्मिनोलॉजी में या बात में अपने टेक्स्ट में हो जाऊं, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपके दिमाग में जो लेयर्स जो पड़ी हुई हैं रेजिस्टेंस की, कि मैं ऐसे नहीं करना, ये चीज अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं उस रास्ते पे नहीं जा सकता, मैं उसको पसंद नहीं कर सकता, उस मेंटल लेयर को झाड़ना चाहता हूँ, उसको हटाना चाहता हूँ और उसके बीच में से होके जाना चाहता हूँ। एंड टू रीच दैट प्लेस विद इन यू वेयर यू ऑलरेडी नो जस्ट एज आई नो एंड वेयर द ट्रूथ इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज हर्ड। और मैं पहुंचू उस प्लेस पे जहां आप ऑलरेडी हो,
जस्ट एज आई नो, जैसे कि मैं जानता हूँ आप भी जानते हैं, एंड वेयर द ट्रूथ इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज हर्ड, जहाँ पे वो जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो एक्सेप्टेड हो, देयर इज देन अ फीलिंग ऑफ एक्साल्टेशन एंड हाइटेंड aliveness as something within you says yes, I know this is true. और तब वो एक फीलिंग ऑफ एक्साल्टेशन या हाइटेंड, एक हाई स्पिरिट सब में पैदा होती है, जब सब एक अल्टीमेट ट्रूथ जो है उससे कनेक्ट होते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, और सब कहते हैं कि हाँ, मुझे ये सत्य पता है. ओवर टू यू सुनैना. Yeah. So now we are going to start new chapter. चैप्टर 1, फर्स्ट चैप्टर. यस. Yeah. I'm so glad. आज तविंदा मैम भी हैं और आज हम चैप्टर 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं. So that's quite good. जी. Great. अपना मन नहीं है आप, ये जो टाइटल है यही बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत आई मीन सेपरेट कर देता है आपकी एंटिटी को आपके माइंड से, आपके मन से. आई थिंक अभी अभी ऑथर ने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो हमारा मन है, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है. हमारे मन के अंदर जितने भी विचार हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब उससे सेपरेट है हमारी जो आइडेंटिटी है. बेसिकली वो ये बताने की कोशिश करें. इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर. आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा, आत्मज्ञान या अनलाइटनमेंट क्या होता है. एक भिखारी 30 से भी अधिक वर्षों से एक सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था. एक दिन एक अजनबी उसके पास से गुजरा. उसको देखकर भिखारी अपनी आदत के अनुसार गिड़गिड़ाया, कुछ पैसा दे दे बाबा, मेरे पास छुट्टा नहीं है. उस अजनबी ने कहा, और फिर भिखारी से उसने पूछा, जिस पर तुम बैठे हो वह क्या है, वह क्या है. भिखारी ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं, ये तो एक पुराना लकड़ी का बक्सा है. मैं तो न जाने कब से इस पर बैठता आया हूँ. अजनबी ने पूछा, इसमें क्या है, कभी देखा. भिखारी बोला, नहीं तो. क्या करना है देखकर, क्या होगा इसमें, कुछ नहीं. क्या होगा इसमें, कुछ नहीं. अजनबी ने जोर देकर कहा, अरे भाई तनिक देखो तो सही. भिखारी ने बड़ी कोशिश करके और बड़ी मुश्किल से उसका ढक्कन खोला और आश्चर्य, अविश्वास और खुशी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने देखा कि वह बक्सा तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था. सो वंडरफुल इट इज सो. आई थिंक जब कोई हमें मेंटर्स भी मिलते हैं और उसी चीज को, उसी सिचुएशन को वो एक डिफरेंट परसेप्शन से देखने के लिए हमें एम्फेसाइज करते हैं. मतलब दे गिव देयर स्पिरिचुअल आईज टू सी द थिंग्स देन वी सी. मतलब उसने कभी खोल के नहीं देखा. तो ऐसे ही हमारा मन है जिसे मुझे लगता है कि हमने जब से पैदा हुए खोल के ही नहीं देखा. जब ये मेंटर्स हमारी लाइफ में आए हैं, सो आई थिंक इनकी वजह से, और जितनी भी प्रीचर्स हैं, सेंट्स हैं, जितने भी आई मीन लोग हैं, आई मीन दे आर जस्ट प्रोपोगेटिंग द लॉज लाइक एनीथिंग. व्हेन दे give us that eye to see the same situation, then you perceive the things. उसको डीपर लेवल पर जाने के लिए हम तभी परसीव कर पाते हैं. दैट्स वेरी 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 असेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं. मैं उसी अजनबी जैसा ही हूँ जिसके पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन वह आपको अंदर झांकने के लिए कह रहा है. बाहर रखे किसी बक्से के अंदर नहीं, जैसा कि कहानी में बताया गया है. सो ब्यूटीफुली उन्होंने कितना, मतलब एक बहुत ही जिसको बोलते हैं कि सटीक एग्जाम्पल के साथ बताने और कोरिलेट करने की कोशिश की है कि वो कितने सालों से, आई मीन इट्स बीन 30 years, उसने खोल के नहीं देखा बक्सा. तो ऐसे ही हमारे अंदर कितने विचार, आई मीन जो हमारा हायर सेल्फ है, आई थिंक उससे जब हम कनेक्ट करते हैं, जितने भी मैंने आई मीन जो भी ज्ञान लेने की या अर्जित करने की कोशिश की है अभी तक, वो यही कहते हैं कि आपके हायर सेल्फ के अंदर वो सारा खजाना है. जस्ट यू हैव टू अलाइन योर माइंड विद योर सोल एंड बॉडी. वंडरफुल. मैं उसी अजनबी जैसा हूँ जिसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वह आपको अंदर झांकने के लिए कह रहा है. बाहर रखे किसी बक्से के अंदर नहीं, जैसा कि कहानी में बताया गया है, बल्कि उससे भी बहुत निकट खुद अपने अंदर झांकने के लिए है. लेकिन मैं कोई भिखारी तो नहीं हूँ, शायद आप ऐसा कहें. यस, वी आर नॉट. इन अ वे वी बिकम ऑल्सो मेनी टाइम्स. एंड हर व्यक्ति जिसे की अपनी असल दौलत मिली नहीं है, और उस दौलत के साथ आने वाला आत्मा का आनंद और गहरी तथा अविचल शांति भी जिसे नहीं मिली है, वह भिखारी ही तो है. मतलब ये कितनी रिलेटेबल बात बोली उन्होंने, बहुत डीप बात कही उन्होंने कि मतलब हम एक भिखारियों की तरह ही घूम रहे हैं वैसे देखा जाए तो. वी आर लुकिंग फॉर द हैप्पीनेस आउटसाइड एंड इट इज लाइंग इनसाइड, और हम खोल के देख नहीं रहे हैं.
जैसे आई थिंक उन्होंने अपने लाइक इंट्रोडक्शन में भी बताया कि कैसे वो बिल्कुल मतलब निराश हताश और पता नहीं क्या क्या हो चुके थे अपनी लाइफ में, कितने नेगेटिव स्टेट से वो घिर चुके थे। और जैसे ही उन्होंने अपनी अंतर मन के अंदर अंतर मन की जो आवाज है उसको सुना, मतलब आई थिंक उनके जो हायर सोल से उनकी आवाज आई, और जब वो अंदर गए और गहरे उतरे अपने ही मन के अंदर, अपने ही दुखों के अंदर, अपने ही विषयों के अंदर, जब वो अंदर चले जाते हैं तो वहां से उनको बहुत सारे आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। सो हर वह व्यक्ति जिसे कि अपना असल दौलत नहीं मिली है और वह उस दौलत के साथ आने वाला आत्मा का आनंद और गहरी व अविचल शांति भी जिसे नहीं मिली है, वह भिखारी ही तो है। भले ही उसके पास ढेर सारी सांसारिक संपत्ति क्यों ना हो। ऐसे लोग सुख या उपलब्धि के चंद टुकड़ों के लिए, मान्यता, सुरक्षा और प्रेम के लिए बाहर भटकते रहें, जबकि असल खजाना तो खुद उनके भीतर ही मौजूद रहता है, जिसमें कि ये सब चीजें तो शामिल रहती ही हैं। साथ ही यह खजाना किसी भी ऐसे खजाने के मुकाबले असीम रूप से महान होता है जो कि यह संसार उन्हें दे सकता है। मतलब इतना कुछ हमारे अंदर है, और आई थिंक मुझे लगता है कि हमें जाना नहीं आता है अंदर, तो ये बुक हमें आई थिंक डीपर इनसाइड हमारे खुद के अंतर मन के अंदर ही लेके जाने वाली है। सो वी आर मोर एक्साइटेड टू गो विद इन। तो तुषार, यू वुड लाइक टू रीड और यू वांट मी टू रीड? Anything, I think I can take up if you allow. Yeah, you can. I mean, if you want that, like आप ये वाला पैराग्राफ ले सकते Okay, right. हैं। And then I'll तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, I'll not take up, वो मैंने साथ साथ मूव कर दिया है। You have yeah, beautifully okay, go explained ahead. well. Yeah, sure, yeah, मैं उसी से नेक्स्ट आगे sure, इंग्लिश में टेकअप करती हूँ। बट ये जब sure, आप ये हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे थे तो मेरे yeah, दिमाग में एक्चुअली में ये वर्ड्स फिर बाद में आए। मेरे दिमाग में यही आ रही थी कि हम लोग ना लाइफ में अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट के ना इतने बेचारे भूखे ही होते हैं, एक्चुअली बैगर जैसी पोजीशन ही होती है कि कोई एक्नॉलेज कर दे हमारे एफर्ट्स को, ये अप्रिशिएट ही कर दे, कोई वैलिडेट ही कर दे, कोई सर्टिफाई कर दे हाँ कि ये अच्छा काम किया किसने। और जबकि ये सब करने की जरूरत नहीं होती, फिर तो हमने मतलब कि वी हैव दैट मीन्स वी हैव गिवन द कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ टू अदर पीपल। तो ये हमें नहीं करना है। ये बुक यही बता रही है कि आपको ये ऑलरेडी सब चीजें आपके अंदर हैं, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल रहना है बाय focusing on being your present. So I'll take it from the next. The word yeah, sure. enlightenment conjures up the idea of some superhuman accomplishment, and the ego likes to keep it that way. जो enlightenment word है वो सुपर ह्यूमन वैसे वर्ड जब एनलाइटनमेंट की बात करते हैं तो ना ऐसे सुपर ह्यूमन अकम्पलिशमेंट लगती है कि ये तो कोई सुपर ह्यूमन ही कर रहा है, हम लोग में नहीं होने वाला ये तो कोई वाला ही कोई साधु पहुंची हुई हस्ती कोई होगी पहाड़ों में बैठा वो कर सकता है एनलाइटनमेंट, हम लोग के बस का नहीं है। एंड द ईगो लाइक्स टू कीप इट दैट वे, और हमारी जो ईगो है वो ये इसको वैलिडेट भी कर देती है कि हाँ हमारा नहीं है, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा। बट इट इज सिंपली योर नेचुरल स्टेट ऑफ फेल्ट वननेस विद बीइंग। तो एनलाइटनमेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एनलाइटनमेंट सिंपली उसने बोला आपकी नेचुरल स्टेट ऑफ सेल्फ ही होती है। आप अपने आप से जितना भीतर से जुड़ते हो, जितना डीप विद इन जाते हो, वो एनलाइटनमेंट का ही स्टेट होता है। इट इज अ स्टेट ऑफ कनेक्टेडनेस विद समथिंग इमेजरेबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। जो एनलाइटनमेंट है वो कनेक्शन होता है एक ऐसी पावर या फोर्स के साथ जिसको आप माप नहीं सकते, जिसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। समथिंग दैट ऑलमोस्ट पैराडॉक्सिकली एसेंशियली यू, जो कि ऑलरेडी आप ही हो एंड येट इज मच ग्रेटर देन यू। और ये ही नहीं, वो आपसे कहीं ज्यादा वो फोर्स बहुत बड़ी होती है और वो आप ही के अंदर है। इट इज फाइंडिंग योर ट्रू नेचर बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म। तो एनलाइटनमेंट जो है क्या है, आप ढूंढ रहे हो अपनी फॉर्म, अपना ट्रू नेचर, आपके नाम और आपकी फॉर्म, जो आपका शोहरत है, आपका नाम है, समाज में स्टेटस है, उसके बियॉन्ड जाके चीजें जो ढूंढते हो ना आप अपने आप से जुड़ के, वो होता है एनलाइटनमेंट। यानी कि इट्स नॉट एनीथिंग, इट्स नॉट समथिंग रिलेटेड विद मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इट्स समथिंग, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अपने भीतर से कनेक्शन है। जितना ज्यादा हम अपने अंदर से अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्शन बिल्टअप करते हैं, वो एनलाइटनमेंट की ही स्टेट होती है। This the inability to feel this connectedness gives rise to illusion of separation from yourself and from the world around you.
और जो अपने आप से नहीं जुड़ा होता, वो ही इंसान जो है वो किसी न किसी वरी में, किसी न किसी सेपरेशन, क्योंकि उसे कनेक्ट नहीं है ना। जब आप अपने आप से नहीं कनेक्ट होते तो आप वर्ल्ड में भी कनेक्ट नहीं होते। सो कहते हैं कि जो बाहर का वर्ल्ड है, इट्स द मिरर ऑफ योर इनर वर्ल्ड। द आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। इसका मतलब अगर आप अंदर से कनेक्ट नहीं हो, सेपरेट हो, तो आप वर्ल्ड से भी, लोगों से, रिश्तों से, जॉब से, पीस से, हैप्पीनेस से सेपरेट ही रहोगे। यू वोंट बी एबल टू अटेन दिस फ्रॉम योर सेल्फ एंड फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड यू। यू देन परसीव योर सेल्फ कॉन्शियसली और कॉन्शियसली एज एन आइसोलेटेड फ्रेगमेंट। इसीलिए बहुत सारी चीजें पाने के बाद, हर एक एक अचीवमेंट्स करने के बाद भी आप कहीं ना कहीं, चाहे कॉन्शियस वे में, चाहे अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, कहीं ना कहीं जो आप एक अपने आप को चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आपके रिलेशन से कनेक्ट नहीं हो रहे होते, आपके जॉब से आप कनेक्ट नहीं कर रहे होते, आपके आसपास के लोगों में आपकी कनेक्टिविटी, अच्छा रिलेशंस नहीं होता, जो चीजें आप एक एक चीज अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ला रहे होते हो, आप उससे भी कनेक्ट नहीं कर रहे होते। आप एक चीज लाते हो, बस हो गया, मन भर गया, फिर दूसरी, फिर भर गया, फिर तीसरी, ऐसे ही रिश्ते, एक रिश्ता, दो रिश्ता, यू ट्राई सो मेनी रिलेशनशिप बट यू डोंट फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस इन दोज रिलेशनशिप। Fear arises and conflict within and without becomes the norm. तो जब आप कनेक्ट नहीं होते तो मन में डर पैदा होता है। डर से अंदर कॉन्फ्लिक्ट, एक अपने आप आज अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, यानी कि अपने अंदर ही एक झड़प सी पैदा हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड विद इन एंड विदाउट बिकम्स द नॉर्म। और वो जो अंदर की लड़ाई है, वो आपको बाहर, अगर आपके रिलेशंस नहीं ठीक है, जॉब नहीं ठीक है, हेल्थ नहीं ठीक है, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि अंदर की लड़ाई जो है उस पर आपने काम नहीं किया है। तो जैसे ही आप अंदर की लड़ाई सॉर्ट आउट करनी शुरू कर सकते हो, बाहर के ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी टेकन केयर हो जाते हैं। I love the Buddha's simple definition of enlightenment as the end of suffering. बुद्ध ने बहुत सिंपली कहा enlightenment क्या है। enlightenment दुखों का अंत है। There is nothing superhuman in that. मतलब अगर दुख, सब किसी भी तरह का दुख, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, इंटेलेक्चुअल है, फाइनेंशियल है, वर्ल्डली है, किसी भी तरह का अगर दुख खत्म ही हो गया, तो बुद्धा ने बोला यही तो एनलाइटनमेंट है। यही तो एनलाइटनमेंट है कि आपको किसी भी तरह का दुख नहीं है, चिंता नहीं है, वरी नहीं है, फियर नहीं है, कोई डर नहीं है लाइफ में। वही एनलाइटनमेंट की स्टेट है। देयर इज नथिंग सुपर ह्यूमन इन दैट। और ऐसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, कहते इसमें कोई सुपर ह्यूमन क्वालिटी थोड़ी ना है। ऑफकोर्स एज अ डेफिनेशन इट इज इनकम्प्लीट। कहते कि हाँ, ये एज अ डेफिनेशन लगता तो इनकम्प्लीट ही है, आधी सी बात है, इसमें कुछ और भी जुड़ना चाहिए। इट ओनली टेल्स यू व्हाट एनलाइटनमेंट इज नॉट। ये आपको ये बताता है कि एनलाइटनमेंट क्या है, क्या नहीं है। नो सफरिंग, मतलब कोई दुख ही नहीं है लाइफ में, कोई चिंता ही नहीं है, वो एनलाइटनमेंट है। लेकिन बट व्हाट्स लेफ्ट व्हेन देयर इज नो मोर सफरिंग। लेकिन अगर सफरिंग ही नहीं है तो फिर बचेगा क्या? क्योंकि अगर सफरिंग ना होगी तो हम, अगर अंधेरा ना हुआ तो हम लाइट नहीं खोजते, पेन ना हुआ, अगर दर्द नहीं हुआ बॉडी में तो दवाई नहीं लगाएंगे, दुख नहीं आया तो पता नहीं चलेगा सुख क्या होता है, रात नहीं होती तो दिन का नहीं पता चलता। तो कहते हैं अगर है ही नहीं है, सफरिंग ही नहीं है, तो फिर कैसे, क्या पता चलेगा? तो व्हाट्स द पॉइंट? द बुद्धा इज साइलेंट ऑन दैट। बुद्धा के पास इसका जवाब नहीं है। एंड हिज साइलेंस इम्प्लाइज दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ। और उनका साइलेंस जो है आपको मजबूर करता है जानने के लिए कि आप इसका आंसर खुद ही फाइंड करो। He uses a negative definition so that the mind cannot make it into something to believe in or into a superhuman accomplishment. उन्होंने नेगेटिव डेफिनेशन को यूज किया ताकि जो आपका मन है वो उस चीज को बिलीव ही ना करे। क्योंकि हम अब जब हम कह रहे हैं कि नो सफरिंग, तो समझ आ रहा है नहीं हो सकता, नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, नो सफरिंग कैसे हो जाएगा? मेरे तो गोल्स नहीं अचीव हो रहे, मेरी तो फाइनेंसेस नहीं सॉर्ट हो रहे, मेरा तो हेल्थ नहीं ठीक हो रहा, मेरे तो रिलेशनशिप नहीं ठीक हो रहे, तो इसका मतलब हम एनलाइटनमेंट मिल ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नेगेटिव डेफिनेशन इसलिए शुरू की, यूज की, ताकि माइंड जो है उसमें बिलीव ही ना करे, और इनटू अ सुपर ह्यूमन अकम्पलिशमेंट, और ऐसा लगे कि ये तो सुपर ह्यूमन अकम्पलिशमेंट है, हम लेमैन आम ह्यूमन जो हम लोग हैं हमारे बस का नहीं है। अ गोल दैट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू अटेन।
उन्होंने ये डेफिनेशन इसलिए बताया ताकि आपको ये लगने लग जाए कि ये तो कुछ ऐसी चीज है भाई, ये सुपर ह्यूमन ही कर सकता है, ये हम लोगों के लिए नहीं, क्योंकि हम वर्ल्डली क्रिएचर है और हमें कुछ ना कुछ तो दुख रहेगा, क्योंकि हम वर्ल्ड में हैं, बड़ी जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने ये सीखा भी यही है कि कुछ ना कुछ तो रहता ही है। मैं तो अक्सर बोलती हूँ, मतलब आई हैव बीन रीडिंग बुक्स, मैं तो अक्सर बोलती हूँ कि पेन इज गेन। मेरे तो ये माइंड में ना बैठा हो, पेन इज गेन, मतलब जब मुझे ऐसे लगता है कि जो पेन होता है उसका एक पर्पस है, होता है, तो मेरे तो यही है, ये तो बिल्कुल ट्रू बैठ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को तो मैं यही मानती हूँ, नो सफरिंग वाली तो हो ही नहीं सकती बात, ऐसी अचीवमेंट किसी के पास भी। Despite this precaution, the majority of Buddhists still believe that enlightenment is for the Buddha, not for them, at least not in this lifetime. हालांकि ये प्रिकॉशन, जो ये स्टेटमेंट देने के बाद बहुत सारे बुद्धिस्ट जो है वो यही मानते हैं कि एनलाइटनमेंट जो है वो बुद्धा के लिए है। उन लोगों बुद्धिस्ट जो मंक्स हैं वो मानते हैं कि बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिल सकती है, हमें नहीं मिलेगी, हम नहीं इसके लायक, क्योंकि हम नो वरीज वाली सिचुएशन में, नो सफरिंग वाली सिचुएशन में आ ही नहीं सकते, एटलीस्ट नॉट इन दिस लाइफ। मतलब इस लाइफ में तो पक्का ही है कि नहीं आएंगे। जैसे अगर हम, आप लोग भी जितने प्रेजेंट है पक्का ही सोच रहे होगे इस टाइम, इस लाइफ में इतनी सारी चिंताएं यार कहाँ से दूर हो जाएंगी, तो मतलब इसमें तो भूल ही जाओ, इस लाइफ टाइम में एनलाइटनमेंट मिलने वाला है, नो चांस। सेम बाकी बुद्धिस्ट मंक्स को भी यही फील होता है। यू यूज द वर्ड बीइंग, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय दैट? आपने ये वर्ड यूज किया बीइंग, क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लेन, आप क्या कहना चाहते हैं जब हम कहते हैं कि बीइंग? तो बीइंग से क्या भावार्थ है, क्या समझ आता है व्हेन यू से इट? सुनैना, ओवर टू यू। थैंक यू तुषार। ये आपने इंग्लिश में पढ़ना था, हिंदी में मैंने करना था एक्सप्लेन। नो 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 नो, मैं यू वही, सेड इट। नो आई सेड मैं इंग्लिश का हिंदी अच्छा, करूंगी और आप ओके ओके, हिंदी को देन एज इट्स इट माय इज हिंदी टेकअप करो। माय मिस्टेक। नो नो, आप हिंदी का इसी के आगे टेकअप कर लोगे बस अब। राइट 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 राइट, So गॉट इट the राइट, question that थैंक यू। says you use the word being ना, अपने वहीं से आगे कनेक्ट कर लेना है। या राइट, गॉट इट। आपने बीइंग शब्द का क्या प्रयोग किया है, क्या आप बता सकते हैं? इससे क्या अभिप्राय है? बीइंग वह है जो शाश्वत, अमर है, शाश्वत है, अमर है, चिरस्थायी है। यह वह जीवात्मा है जो जन्म मरण के चक्कर में रहने वाले असंख्य रूपों से परे एक समेकित जीवन है। तथापि यह बीइंग, यह अस्तित्व केवल पार व परे ही नहीं है, बल्कि हर रूप के अंदर अपने अंतरम अदृश्य तथा अविनाशी तत्व रूप से यह विद्यमान रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि आप आपकी अंतरात्मा के रूप में, आपके वास्तविक स्वरूप में अभी ही उपलब्ध हैं, लेकिन आप अपने मन से इसे पकड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, इसे समझने का भी प्रयास मत कीजिएगा। आप इसे केवल तब जान सकते हैं जब आपका मन बिल्कुल निश्चल हो, बिल्कुल शांत हो, जब आपका अवधान पूरी तरह से और नितांत रूप से अब में हो। अब जब आप अब में विद्यमान हो, तब बीइंग को महसूस किया जा सकता है, लेकिन मानसिक स्तर पर उसे कभी नहीं समझा जा सकता। बीइंग के प्रति सजगता को पुनः प्राप्त कर लेना और उस सजगता को बोध अनुभूति की अवस्था में अवस्थित रहना है, यही ही आत्मज्ञान और एनलाइटनमेंट है। इट्स क्वाइट डीप, आई बिलीव कि मन से आप उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि मन, दो चीजें जो मुझे जो मेन यहाँ समझ आती हैं वो ये है कि मन को जब आप प्रेजेंट में रखते हैं तो आप अपने बीइंग के साथ कनेक्ट होने की चेष्टा कर सकते हैं। यू कैन थिंक ऑफ कनेक्टिंग योर सेल्फ विद योर बीइंग, और आप बीइंग की स्टेट में ही होते हैं एक्चुअल में जब आप प्रेजेंट में होते हैं। और जैसे ही आपका जो मन है, मतलब अगर शांत नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि मतलब ये पास्ट में ही अटका हुआ है, और ये ट्रू है, कहीं ना कहीं जो आपका मन है वो आपको कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन ही दे रहा है आपके पास्ट में ले जाकर के कि आपका मन कहाँ अटका है, इट वांट्स टू बी हील्ड। आर यू गेटिंग इट? कि मतलब आपका बीइंग, आपका मन एक्चुअल में, हमें लगता है कि ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है, या हमारे मन में ऐसे फियर्स हैं, हमारे मन में ये वो हैं, दैट इज व्हाई इट इज टेलिंग, वो आपको येल करके बता रहा है टाइम एंड अगेन कि मेरा जो हुक है वहां अटका हुआ है, ट्राई टू रिलीज मी।
यू कांट, मतलब आपका क्या क्या होता है कि हमारे जब इमोशंस हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, तो हमारा मन जो है, मतलब क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ सर्वेंट। कहते हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ ऑनेस्ट सर्वेंट, कि आप उसको जिस भी इमोशन से, जिस भी स्टेट से, जिस भी भाव से उसको भर देंगे, वो वैसा ही महसूस करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही आपने अपना हुक बाहर पास से नहीं निकाला, तो वो वहां पर आपका ध्यान बार बार लेकर के जाएगा। तो ये बुक आई थिंक आपको और हम सबको ये बता रही है कि कैसे, मतलब आप बीइंग से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे मन में जो हमने पता नहीं कहाँ कहाँ से अपनी धारणाएं बना ली हैं कि मतलब जैसे अभी पिछले पैराग्राफ में तो शाह ने पढ़ा कि गौतम बुद्धा ही कनेक्ट कर सकते थे बिकॉज ही वॉज केपेबल इनफ। हमने अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया ड्यू टू एनी XYZ रीजन। इट माइट बी ड्यू टू द मिसबिलीफ दैट वी आर कैरिंग, इट माइट बी ड्यू टू द पेरेंटिंग दैट वी फेस्ड, जो हमें अपब्रिंगिंग मिली चीजों का। ये भी हो सकता है कि नॉन अवेयरनेस में हम बड़े हो गए, और बहुत सारी जैसे हम जैसे जैसे बातें करते जाते हैं वैसे वैसे आई थिंक जिस तरह की संगति में रहते हैं, और वहां से जो हमारा बिलीव डेवलप हो जाता है कि यार वो कर सकते थे, हम नहीं कर सकते हैं। मतलब हमने लोगों की बातों पर भी यकीन कर लिया कहीं ना कहीं, रादर देन लिसनिंग टू आवर सेंट्स। मैं बचपन से मैं आई बिलोंग टू अ विलेज, एंड वहाँ हर साल, मतलब वहाँ मंदिर में वृंदावन से 4 दिन के लिए सेंट्स आते हैं और वो प्रीचिंग करते हैं। और मतलब मुझे उनकी बातें बहुत ज्यादा मतलब टच करती थी, बट मैं कभी भी ऐसा मतलब ये गहराई से मैं जान नहीं पाई, या मैंने जानने की कभी ने चेष्टा की ही नहीं, या किसी ने बताया ही नहीं कि अपने मन, मतलब उसको, मतलब लेना कैसे है, चीजों को समझना कैसे है। तो आज विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज बुक्स एंड मेंटर्स एंड पीपल जिनको हमने ध्यान से जितना जितना सुना, तो ये समझ में आया कि अपना जो हुक है, जो पास्ट में भी अटका है, उसको कैसे वहां से निकालना है। और कैसे अभी हमने लाइक अर्हाटिक योगा की कुछ अर्हाटिक प्रैक्टिसेस को हमने ज्वाइन किया अपने बीइंग से कनेक्ट करने के लिए ही। दीज आर द प्रैक्टिसेस जहां आपको एक्चुअल में प्रिपेयर किया जाता है, आपको हेल्प आउट किया जाता है। जैसे हमने सुना है कि कुंडलिनी अवेकनिंग जो है वो बहुत टफ होती है। कुंडलिनी अवेकनिंग ये होता है, हमने पहले ही अपने प्री नोशंस जो है अपने माइंड में बनाए हुए हैं। हैव वी ट्राई टू प्रैक्टिस दोज थिंग्स? हमने क्या कभी कोशिश की कि जो स्केड्यूल हमें बताया गया उसको हम फॉलो कर लें? और बिलीव यू मी कि जितना मैंने सुना था ना कि मतलब जो इजी चीजें हैं वो करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है और जो डिफिकल्ट चीजें होती हैं वो हम सबसे पहले कर लेते हैं, और जो हैबिट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हम इजीली डेवलप कर लेते हैं। सो दिस बुक इज एक्चुअली स्टेटिंग कि अपने जो बिलीव्स हैं और अपने जो हुक्स हैं, मतलब उसके ऊपर हम ध्यान दें, तो हम भी वो कैपेबिलिटी कैरी करते हैं। मतलब जब हमने अपने आप को नकारा ना, तो हमने अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी कहीं ना कहीं जो है वो निग्लेक्ट किया, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ बीइंग ओनली, वी आर अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। जहां हमने निगेट किया, तो हमने अपने अंदर बैठे परमात्मा को भी निगेट किया। सो अपने आप को सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा, द वे वी आर, हु वी आर, वेयर एवर वी आर, कहाँ से भी हम हैं। हम किसी छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं, बड़े शहर से बिलोंग करते हैं, इट हार्डली मैटर्स। We are child of God, and this is the innate truth that we are carrying a part of that consciousness within us. And this book is actually taking us into that direction only. Yeah. जब आप बीइंग कहते हैं, तब क्या आप ईश्वर के बारे में बताकर बात कर रहे होते हैं? और अगर ऐसा होता है, ऐसा है, तो आप ईश्वर शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? सच अ बिग थिंग। जब आप बीइंग कहते हैं, तब क्या आप ईश्वर के बारे में बात कर रहे होते हैं? और अगर ऐसा है, तो आप ईश्वर शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? ये बहुत बड़ी लाइन है। मतलब उन्होंने कहा है कि जो बीइंग आप कहते हैं, कि इसका मतलब ये, तो तब आप क्या आप ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं? मतलब जब आप बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हम ईश्वर से उसको कंपैरिजन कर रहे हैं? तो अगर ऐसा होता है, तो आप उस बीइंग को ईश्वर ही क्यों नहीं बोलते हैं? It is a very deep question to be dwelled into, actually. I just felt it. And then हजारों वर्षों से ईश्वर शब्द का प्रयोग का बड़ा दुरुपयोग होता आया है, और इसीलिए यह शब्द आप अपना अर्थ खो चुका है, क्योंकि ईश्वर को हमने इतना सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग धर्मों में हमने उनको बांट दिया, और जो एसेंस था हमने उससे वो निकालने की कोशिश नहीं की। इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। मैं इस शब्द का प्रयोग तो करता हूं, लेकिन बस कभी कभी,
दुरुपयोग से यहाँ मेरा अभिप्राय यह है कि जिन लोगों ने पवित्रता के इस साम्राज्य की, इस शब्द के पीछे के अनंत विस्तार की एक झलक भी नहीं देखी है, वे लोग इसका प्रयोग इतने दृढ़ विश्वास के साथ करते हैं कि वे जानते हैं कि किस बारे में बात कर रहे हैं, या ईश्वर के विरुद्ध वे ऐसे बहस करते हैं जैसे कि वे जानते हैं कि वह क्या चीज है और जिसे वे अस्वीकार कर रहे हैं। ऐसा दुरुपयोग बेतुके विश्वासों, हठ धर्मिताओं और अहंकार भरे मिथ्या आभासों को जन्म देता है, जैसे मेरा या हमारा ईश्वर ही एकमात्र वास्तविक ईश्वर है और तुम्हारा ईश्वर मिथ्या है, भ्रम है या नित्य, कि यह प्रसिद्ध उक्ति ईश्वर मर चुका है। सच अ बिग थिंग। ये बहुत बड़ी बात है कि एक्चुअल में जो भी हमने बात की कि वो पूरे, मतलब हमने एक्चुअल में डिवाइड करके रख दिया है गॉड को, रादर देन बीइंग एंड नोइंग हिम। हम लोग मतलब पता नहीं क्या ही करते चले गए और क्या ही करते चले, वी आर जस्ट फॉलोइंग। जैसे होता ना कि मतलब हमने एक धर्म को हमने बोल दिया कि ये सही है, एक मत को हमने बोल दिया कि ये सही है और दूसरा गलत है, आपका सही है हमारा गलत है, या हमारा सही है आपका गलत है। मतलब हमने मतलब कितनी मतलब बेतुकी, जिसको बोलते हैं कि धारणाओं में परमात्मा को, ईश्वर को हमने बांध के रख दिया, जिनको जानने की जरूरत थी, बनने की जरूरत थी और उनके साथ जुड़ने की जरूरत थी, उसको जुड़ने की बजाय हमने डेविएट कर दिया। मतलब वी जस्ट मतलब सेग्रीगेटेड, मतलब उनको एक ऐसे टुकड़ों में बांट दिया हमने। और जुड़ने की तो बात दूर की बात है, मतलब हम लोग अपने में ही मतलब वो मतलब फंस के रह गए हम लोग। This is a very very big thing that there's a realization which is coming from author's mind actually and realizations. यह ईश्वर शब्द आज एक सीमित व संकुचित अवधारणा बनकर रह गया है। जैसे ही इस शब्द को बोला जाता है तो तुरंत एक मानसिक छवि उभर कर आती है। हालांकि अब वह एक सफेद दाढ़ी वाले वयोवृद्ध व्यक्ति की छवि जो शायद नहीं बनती, लेकिन ईश्वर शब्द सुनने पर या सोचने पर आप किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे चीज का तो मानसिक चित्रण कर ही लेते हैं जो आपसे बाहर कहीं है। और हाँ, यह व्यक्ति या चीज प्राय पुल्लिंग हुआ करती है। जनरली मतलब जो हमने आउटसाइड, जो हमने अवधारणा है, मतलब जो लिमिटेड और संकुचित, संकुचित को क्या बोलेंगे तुषार? संकुचित, लिमिटेड, लिमिटेड या सीमित, वह संकुचित, या एक ही है ये। आई थिंक हमने बहुत ही लिमिट कर लिया, मतलब उस लिमिटलेस क्लोज्ड कॉन्सेप्ट, सॉरी क्लोज्ड कॉन्सेप्ट, क्लोज्ड कॉन्सेप्ट। आई थिंक हमने बहुत ही लिमिटेशंस के साथ इतनी मतलब जो कण कण में विद्यमान है और जो कण कण में हम उसको महसूस कर सकते हैं, कर सकने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हम बहुत सारे अडंबरों में फंस गए और हमें गॉड से एक्चुअल में दूर ही कर दिया गया। हमें डरा दिया गया गॉड के बारे में। हम एक भय पूर्ण अप्रोच के साथ मतलब उनकी पूजा करते हैं। हमें अगर हम मतलब I just do not want to like defame or demean anyone, but we are being brought up in that way कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया गया तो ऐसा हो जाएगा। मतलब हम डर से ऑपरेट होते रहे और आई थिंक जहां डर होता है वहां कनेक्शन कभी भी नहीं स्टेब्लिश हो पाता है। इवन एक बच्चे का भी अपने पेरेंट के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो पाता है अगर उस बच्चे के मन में अपने माता पिता से बात करने का भय रहता है, या उसके मतलब फियरफुल अप्रोच के साथ आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, तो बच्चों के अंदर वो कनेक्शन ही बिल्ड नहीं हो पाता है। अगर वो कल को अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, whatever they want to share, we have not facilitated them to be acknowledged or to be heard or to be listened and to be understood in that particular manner. So we are, I mean, they're talking about that only here. एंड ईश्वर बीइंग या कोई भी समानार्थी अन्य शब्द न तो उस शब्द के पीछे की अनिर्वचनीय और अवर्णनीय वास्तविकता को परिभाषित कर सकता है और न ही व्याख्या कर सकता है। इसीलिए एकमात्र महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह शब्द जिसकी ओर संकेत करता है, क्या उसे अनुभव करने में वह आपके लिए सहायक सिद्ध होता है या बाधक बनता है? क्या यह शब्द खुद से परे उस वास्तविकता की ओर संकेत करता है जो कि अत्यंत गूढ़ है, अनुभवातीत है, या यह खुद को आपके मन में केवल एक ऐसी अवधारणा के रूप में, एक ऐसी मानसिक मूर्ति के रूप में बड़ी आसानी से ढल जाने देता है जिसे कि आप विश्वास रखते
हैं। बीइंग शब्द कुछ ही बयान नहीं करता है और कुछ बयान नहीं करता है, और ईश्वर शब्द भी नहीं करता है। तथापि बीइंग शब्द के साथ एक अच्छी बात यह है कि कोई सीमित व संकुचित अवधारणा नहीं है। यह शब्द उस असीम अदृश्य को घटाकर एक सीमित अस्तित्व नहीं बना देता। यह इस शब्द की मानसिक छवि बनाना भी असंभव है। कोई इस पर केवल अपना ही आधिपत्य भी नहीं जमा सकता है। यह तो आपका वास्तविक मूल तत्व है और आपकी अपनी विद्यमानता की अनुभूति के रूप में यहाँ मैं हूं या मैं वह हूं की बजाय मैं हूं के बोध के रूप में, बीइंग के रूप में यह आपकी तुरंत पहुंच में रहता है। इसीलिए बीइंग शब्द और बीइंग को अनुभव करने के बीच का फैसला केवल एक कदम ही रहता है। सच अ बिग थिंग। आई थिंक बहुत ही डीप है ये। मतलब मैं यह हूं या मैं वह हूं, मैं हूं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा जमीन और आसमान का अंतर है। मतलब अगर हम देखें कि बीइंग शब्द को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें या अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम संकुचित भी कर सकते हैं, हम उसको बहुत ज्यादा लिमिट कर देते हैं। हम ईश्वर को मतलब हम परसीव भी कर सकते हैं, जो हमने बाहर जो मूर्तियों के साथ हम कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक रूप देने की कोशिश की है हमने, उनको महसूस करने की कोशिश नहीं की हमने। तो जैसे ही हम ये एहसास करते हैं कि मैं हूं मतलब मैं ईश्वर का स्वरूप हूं, जब हम इस स्वरूप में, इस भाव में जब हम स्टेब्लिश हो जाते हैं या हो सकने की चेष्टा कर सकते हैं, तो आई थिंक जो हम कनेक्शन है वो ज्यादा गहरा फील कर सकते हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स को अगर ये बोलते हैं, अगर बच्चे मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करते हैं कि तुम में मेरा ही तो अंश है, मतलब तो आपको एक कनेक्शन सा आता है। जैसे आप अपने आई थिंक बच्चे को जैसे बोलते हैं कि ये जो चीजें हैं ये माँ पे गई हैं, ये जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं ये पिता से लिए गए हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो भाव है, आई थिंक वो जो कनेक्शन है वो पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं मतलब हम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यू आर अ पार्ट ऑफ मी, यू आर नॉट मी, यू आर अ पार्ट ऑफ मी, यू आर हाफ ऑफ योर मदर एंड योर हाफ ऑफ योर फादर, है ना। मतलब कहीं ना कहीं उसको हम एक बांधने की भी कोशिश करते हैं, हालांकि उसकी अपनी जो बीइंग है, उसकी जो अपनी पर्सनालिटी है, कहीं ना कहीं जब उसको आप बोलेंगे कि आप खुद हो, सो आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा एहसास है, बहुत ही भावपूर्ण मुझे लगता है कि ये एहसास है इन इट्स ओन वे कि मैं हूं और तुम भी हो। आई थिंक इट अब वो सेग्रीगेट नहीं करता है, वो सेपरेट नहीं करता है। I think that's how I can explain it to it. I hope I have done justice to this paragraph. Though, if Tushar, you can also add up here, or Thank you you. would like Thank to you add so up. much. Yeah. Thank you so much, Sunaina. No, beautifully explained, and I completely loved it कि हम वो जो I am that I am. Tarvinder Oh, ma'am, yes. I would also request Tarvinder ma'am to dwell on the same, क्योंकि मैम ने हमें ये सिखाया था जब हम अरहाटिक प्रेप कर रहे थे, तो मैम वहां पे प्रेयर आती थी, तो आई एम दैट आई एम मास्टर च्योक सोई का प्रेयर है, वो से बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात ही बोल रहे हैं। और अदरवाइज Yeah. हम जितनी भी स्टडी पढ़ते हैं तो उसमें यही बोलते हैं कि हम जो है उसी का अंश हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम बीइंग। तो हम जो बीइंग हैं, हमारा अस्तित्व जो है वहीं से, हम उन्हीं के ओशन की ड्रॉप है, वो बड़ा सागर है, हम उसी की ड्रॉप है। सो आई वुड लाइक Tarvinder मैम टू share and dwell on this same concept and share her reflection on the subject. Tarvinder ma'am, over to you. Would you like to share your opinion on the same? Atma Namaste. It is really lovely to hear both of you explaining things so beautifully. The idea of connecting was that I listened to you, both of you, for a change. Thank you so much, ma'am. Thank you. So it's so lovely. Yes, you're right. All the आज आपने जो भी शेयर किया वो बहुत खूबसूरत था, और उसमें उन्होंने यही कहने की कोशिश की है कि जो मास्टर ने भी कहा है, आई एम दैट आई एम, मैं हूँ जो, वो मैं हूँ, है ना। एंड ना तो उसमें कोई थॉट है, ना उसमें कोई बॉडी है, और ना ही उसमें कोई ऐसी इमोशंस हैं जो जुड़ी हुई हैं। मैं हूँ, केवल वो आत्मा है। तो हम कनेक्टेड कहाँ हैं? उस डिवाइन से कनेक्टेड हैं। हम अपने डिवाइन स्पार्क से कनेक्टेड हैं, और डिवाइन स्पार्क से फिर हम अपने गुरु से कनेक्टेड हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग टुडे। और हम एक
आत्मा क्या है? आत्मा इज लाइक इट्स अ बीइंग। जो आपने बीइंग की बात की, इट वाज सो ब्यूटिफुली सेड देयर कि हम बीइंग्स हैं। सो इफ आई एम अ बीइंग, then obviously I will not have any emotions, I will not have any lower emotions, I will not have any thought forms wherein I'm connecting on any other level except on the soul level. So it is amazing, you know, जो आपने कहा सुनाया ना कि सब रास्ते ले तो वहीं जा रहे हैं। हर हर फिलोसोफर, हर थिंकर, हर राइटर हमें क्या कह रहा है, एक Yeah, ही चीज। सो so true. ब्यूटिफुली रिटन, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। आई थिंक आई विल नॉट टेक योर टाइम, बट You. अमेजिंग बोथ ऑफ यू। Thank you, ma'am. No, we would love Thank to you. Thanks a lot, have ma'am. you in our every session. आई विल By बी the देयर। way, for everyone, ये तरविंदर मैम हमारे वेरी डियर तरविंदर मैम है, और इनसे हमने पुरानी हीलिंग स्टडीज मैम से ही सीखी हैं। बहुत इनपुट है, बहुत रिफ्लेक्शन है, बहुत गाइड करते हैं मैम। एंड शी इज सो ग्राउंडेड, सो हम्बल, मतलब इतने स्वीट हैं। जब हम ढूंढ रहे थे, मैं और सुनैना तरविंदर मैम, मतलब प्राणिक हीलर्स ढूंढ रहे थे यहाँ पे जो करवा सके, तो जब मैं हम वी फर्स्ट मेट हर नो, तो तभी से हमें, मतलब मैं पर्सनली मैम को भी पता है, मैंने कहा मैं वो जगह से कनेक्ट कहीं नहीं कर रही थी, मैं मैम से कनेक्ट कर रही थी कि यार इनसे करना है, इनसे ही करना है। तो मैंने मैम से फिर रिक्वेस्ट किया कि आप, अगर हम अपना प्रमाइसेस यूज करें, आप वहां आके हमें पढ़ा सकते हैं। तो शी, आई मीन बाय गॉड ग्रेस शी अग्रीड, और हम लोग अपनी जगह पे पढ़ पाए। नहीं तो मतलब मैं, मेरे को लग रहा था कि यार, और इतना मैम ने समय दिया फर्स्ट मीटिंग में ही हमें, हम समझने गए थे क्या है, पुराने का भी डाउट में थे करें नहीं करें, पर इतना अच्छा मैम ने स्टडी दिया। और उसके बाद भी मैम ने हैंड होल्डिंग इतनी जबरदस्त रखी है, तो हमें गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। लाइक थैंक यू सो मच रविंदर मैम फॉर गाइडिंग अस थ्रू थैंक यू, on every step, and whenever we seek your time, you're readily available. And थैंक thank you यू। so much for And coming and showing up. yeah, I want to add on here, तुषार। I think हम लोग प्राणिक के लिए भी या ट्विन हार्ट के लिए कोई एक दिन स्पेसिफिक हम रख सकते हैं, जिसमें मैम जो है प्राणिक हीलिंग होती क्या है, हाउ दिस वर्क्स, एंड हाउ हमारे चक्रा जो है वो कैसे अफेक्ट होते हैं। आई थिंक फंक्शनिंग ऑफ चक्रास एंड इमोशंस ऑफ चक्रास एंड एवरीथिंग, like ma'am can take out time from her busy schedule and she can explain Yeah. it to all of us. Yes, yes. And for sure, ma'am, and we would like to have you in every session, every class, because your presence means a lot. Thank you, ma'am. थैंक यू, हाईली obliged, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Ji, the space is open for everyone to share their sweet reflections on the same subject. Thank you, Aisha ji, for joining. You were there in our autobiography of Yogi as well. Somehow you could not continue, but I'm so glad you are here again with us, reading Power of Now. And we would love to have your inputs as well. And those who want to share theirs, please go ahead, क्योंकि समय already 8-6 हो गया है। और जी आयशा जी, थैंक यू फॉर दिस लव, एंड वी वुड लव टू हैव योर पोएटिक एक्सप्लेनेशन एज वेल। आई स्टिल रिमेम्बर एंड लव दैट कि आप इतने अच्छे मीठे से प्यार से पोएटिक फ्लो में बताती हैं हर चीज, मजा आता है। और उन्होंने बैकग्राउंड में भी सूफी लगाए हुए हैं। एक्चुअली It is a reflection of her personality. या are you at a comfortable place to speak up and share? You can have a thumbs up, virtual thumbs up, or बहुत बहुत thank you, बहुत बहुत जी एक्चुअली बहुत मेरा गला ठीक बढ़िया नहीं है, बताया इंशाल्लाह आपने। मैं नेक्स्ट टाइम आज मैं कैमरा नहीं ट्रांसलेट करूंगी। गला बेहतर नहीं है मेरा अच्छे से। all right, Aisha ji, please. You may mute yourself since you're not keeping well, but we would love to have your opinion in the next session when you get better. Thank you so much, by the way, for joining and for showing up today. Bhumika ji, you are saying something. Please go ahead. जी Bhumika ji. आजकल मैं भी एक, हाँ जी, मैं कह रही आजकल मैं भी एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रही थी, जी तो उसमें भी यही आ रहा है, और मैं जो आप लोगों की जूम मीटिंग ले रही हूँ उसमें भी यही आ रहा है। जी गुरु का असली अर्थ होता है गुप्त रूह। गुप्त रूह मतलब हमारे अंदर जो गुप्त खुशबू होती है, वो अगर हम पहचान लें तो हम सब कुछ पहचान लेंगे। और वो बात बार बार आ रही है कि गुप्त रूह, और ये हर लेसन में आ रही है। मुझे मतलब अच्छा भी लग रहा है, और मतलब कि गुप्त रूह को पहचान के परमात्मा को जानो, मतलब गुप्त रूह को परमात्मा से कनेक्शन कराओ। जी गुरु कोई नहीं होता है, अपनी रूह ही गुरु गुप्त होती है, जी जिससे आपने पहचान लिया तो आप दुनिया में आप सब कुछ समझने लायक हो जाएंगे।
जी जी वही है ना कि अंदर नहीं जाते, बाहर जाते रहते हैं। तो वो बहुत सारे दोहे भी है, कबीर वगैरह सबने बहुत अच्छे अच्छे दोहे बोले। जी। तो थैंक यू। वही है कि हर लेसन में भी यही आ रहा है, तो मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ वो मिल रही है कि आप पहचानो, खुद को बस पहचानो, बीइंग ही हो बस जाना है यही भूमिका है। जी, आपने बीइंग हो जाना है आपने। आज तो भूमिका जी हाँ। खा गए, बाकी सब पीछे पछड़ गए हैं, और आज भूमिका जी आगे निकल गए हैं। नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं निकले हैं, मतलब आप लोगों से ही सीख रहे हैं। बाकी सब मैसेंजर है एक दूसरे के। अपनी अगर रूह को पहचाने तो हम और आप मैसेंजर ही हैं एक दूसरे के। जी जी। मतलब हर कुछ आप जानते नहीं है बाहर से, इसलिए लेना भी पड़ता है। थैंक यू जी, जिसमें आप थैंक यू। हमारे अच्छे मेंटोर हैं। थैंक यू। Mentor is a very big word, Bhumika ji. We are just trying to just be a good reader first. And we are trying to be a good human first, and then mentor तो अभी बहुत बड़ी उपाधि है actually. जी। So थैंक yeah, यू जी। thank you. Thank you. I totally agree with what you said that we need to be connected with the self, and that's वो खुद ही गुरु का एहसास देगा कि जब हम अपने आप से, अपने गुप्त रूह से कनेक्ट हो जाते हैं, that is guru. I mean, that is a new word and new explanation that I've learned today. Thank you Actually, so much. indeed. Ji, anyone else who would want to share before we wind up? I would love to have other inputs as well on the same. Ji, Masuda, good evening. Hi, Tushar. Hi, Hi, hi. Sunita. Hi, everybody. Hi, good evening, Good Masuda. Good to have you. evening. थैंक यू। मुझे तो रेने डिस्कार्टे का वो याद आता है, द फिलोसोफर व्हेन ही सेड आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो ये जो थिंकिंग पावर है, इसी पे ध्यान जो है वो बार बार जा रहा था। और यही है कि जैसे हम लास्ट उसमें भी बात कर रहे थे कि जो क्रिएटर है वो इतना इनफाइनाइट है कि हम उसको किसी चीज में कैप्चर नहीं कर सकते, कोई फॉर्म में, किसी चीज में। एंड हर चीज में उसका एक निशानी है। हर चीज देखो, किसी भी नजर से देखो तो आपको जो है, सिवाय ग्रेटिट्यूड के, कि जिस जो आपके बनाने वाला है, जो हमारी भी बनावट है, और जो हमारा एग्जिस्टेंस है, अगर हमें जरा सा सर्वाइकल पेन या कुछ हो जाए तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम सीधे खड़े हो जाएं। तो, तो ये है हम। दिस इज so being is like you have to really there's so much in it, it's so metaphysical कि आपको जो है बड़ा उसको डीप में समझने की जरूरत है। उसमें सभी कुछ आ जाता है। हम हर चीज को ग्रांटेड लिए बैठे हुए हैं ना, जैसे ये हमारा है, हमारा साडा हक इत्थे रख वाला एटीट्यूड डज नॉट वर्क। That's right. मुझे बहुत अच्छा लगा when you said कि थोड़ा सा सर्वाइकल हो जाए तो औकात पता चल जाती है कि ये है। This is who we are। इतनी सी बेर उसको तो बस हाँ। धाड़ धाए धाए धुश हो जाता है। So that is so true कि तब पता चलता है कि नहीं यार, अपने बस नहीं, मतलब there is something bigger that's working and we need to ask for the blessings of that supreme power to be with us and on everyone. Beautiful, आते beautiful. मुझे लगता है कि अगर बीइंग हो जाएगी ना, सर्वाइकल होगा ही नहीं। हाँ, ये भी है, हाँ। ये अब भी है। बीइंग हो ही नहीं रहे ना, हम अभी तो हाँ, समझने की तो कोशिश कर रहे हैं कि सारे बीइंग है। ये पेन जो है वो कुछ नहीं है, हमारे नेगेटिव इमोशंस ही है जो स्टोर्ड है सब जगह। या इवन जब किसी कोच के पास ऐसे अपनी काउंसलिंग या कोचिंग देने के लिए जाते हैं ना, तो दे और मतलब ये उनका पहला लाइन होता है, पहला स्टेटमेंट ये होता है, दे स्पीक लाइक दिस कि हु यू आर, रिकॉग्नाइज इट, पहले ये बताओ कि आप हैं कौन। तो जब वो ऐसा बोलते हैं तो वो उसके पीछे एक गहरा छुपा हुआ शब्द, मतलब मीनिंग होता है एक्चुअली, कि आप मतलब अपने आप को ऐसे डिफाइन कैसे कर रहे हैं। यू आर डिफाइनिंग योर सेल्फ एज योर जॉब, जैसे अभी ऑथर ने पहले ही आई मीन अपनी हाँ, इंट्रोडक्शन में भी राइट बताया कि राइट, हाउ वी आर लेबलिंग आवर सेल्स एक्चुअली। जब हम लेबलिंग लेबल से करते हैं तो हम हमारी लिमिटेशंस वैसे भी उस लेबल तक ही सीमित रह जाती हैं। अप। या सो जैसे वो ऑरी का नहीं आता है, इट इज अ वेरी इररिलेवेंट एग्जांपल, आई एम द लिवर। अब ये नहीं पता कि कौन सा कह रहा है, वो लीवर वाला कह रहा है या लिवर वाला कह रहा है। आई एम लिवर। हाँ, क्योंकि जहां तक ये लेबल्स के नाम है, तो जब तक आपके पास गद्दी है तभी लोग आपको पूछते हैं ना। एक बार आपकी वो पोजीशन खत्म हो जाती है, आप रिटायर कर जाते हैं, फिर आपको फिर समझ में आ जाता है, अरे हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो That ये is जब true. तक आपके पास साइनिंग अथॉरिटी होती है, कुछ होती है, तब तक आपको पूछते हैं लोग। True. एंड That is देन अगेन से वो सडनली वो एक रश होता है ना कि हाँ हमें यहाँ अचीव करना है। फिर जब बहुत कुछ अचीव कर लगते हैं, फिर आपको याद आता है
कि ये सब तो बड़ा बेमायना है, हमें इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है। अब फिर वापस लौटना है, और जहाँ लौटना है वहां में पे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने कर्म चाहिए। तो वो हम्बलनेस अपने आप आ जाती है I think the जब हम basic essence of today's reading that we have read so far is to be connected with your inner self. और हम लास्ट 2 सेशन से 2 असाइनमेंट में दे चुकी हूँ. Those who have been practicing good, those who have not been practicing, stay on this track. Maybe someday you will get the blessings of good Lord and you start doing the assignments. But to get connected with yourself, I would encourage everyone to please do that assignment. If you okay, you can share, DM me. If you're not okay, but do it. Make it a habit that you complete the assignment for yourself, because that will help you to get into the power of now. कि आप उस टाइम पे, उस मोमेंट पे क्या हो, कौन सा इमोशन हो, कौन सा थॉट हो, या आप बियॉन्ड थॉट हो, बियॉन्ड इमोशन हो, बियॉन्ड लेबल हो, बियॉन्ड डेजिग्नेशन हो, हु यू आर एट दैट मोमेंट. उस मोमेंट पे कौन सा इमोशन फील कर रहे हो, उस इमोशन से कौन सा पेन ट्रिगर हो रहा है. तो ये सब, ये लिखने की प्रैक्टिसेस है. आई Define yourself without label. Define yourself without label. Introduce yourself without label. without label, without name. Yeah, good. So thank you so much, everyone, Yeah. for listening today. It's already 15 past 8, and we won't be taking that long. We would love to see you on Monday, same time, 7 to 8. And before we wind up, let's join the hands together for the concluding prayer. Sarve Bhavantu Sukhi. तुषार, GRT. मेरे को कोटेशन याद आई है अभी. Please go ahead. एक कोटेशन भीखा साहिब की कोटेशन है. भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, हृदय खोल नहीं जानते, ताते भय कंगाल. भाई भीखा साहिब कह रहे हैं, भाई सबके पास है अंदर वो सब, शांति, खुशी, प्यार, यानी सब हमारे अंदर है, लेकिन हाथ फैलाए बैठे हैं, मुझे शांति दे दो, बाहर से, और अंदर कभी गए नहीं. Beautiful, तो भाई auntie. भीखा So साहिब यही relevant. कह रहे हैं. You भीखा nailed it. आप हाँ जी. हमेशा एक लाइनर देते हो और नशा ही कर देते हो. So you मेरी nailed. मॉम है ना, मेरी मॉम है, वो मैम भी बोलती, तविंदर मैम की 1 लाइनर से तुम ऐड कर देती हो. वही Trying to same. add. Same. So you've got इससे this. सीखा मुझे लग रहा है. ये Yeah, ability आपको यहाँ से आई है. Okay. लग रहा है. हाँ. Good. Thank you so much for sharing, Auntie ji. Thank you so much. I think we can just conclude, wind up with Yeah. the prayer. Yeah. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhag bhave. Blessings to all. Thank you so much, everyone, for Thank joining us you. on Monday, 7 Yeah. to 8. Thank you. Thank you, Shubhratri. Good night. Happy weekend, Have a everyone. nice weekend. Yeah. Bye-bye. Thank you. Thank Thank you. you, Thank you, everyone.